Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Just yesterday, we have to study about the double entry system. In previous videos, you have learned a lot of preparation of the accounting equation. Now, through this video, I would like to tell you the double entry system. In double entry system, my dear children, in every business, the transactions, those who are in financial nature, just affecting the two aspects. Suppose that in business transactions, whether we are sacrificing the value of something in transaction of things, whether we are sacrificing, we are having a things, purchasing a things, just sacrificing the value of other things. On other hand, in simple way, you can tell it was twofold aspect: the receiving of value on the other hand and the giving of the same value on the other hand. कोई भी चीज यदि हम एक हाथ से लेते हैं, कोई सामान रिसीव कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो दूसरे हाथ से उसका वैल्यू सेक्रीफाइस करते हैं. तो टू फोल्ड एस्पेक्ट इन एवरी ट्रांजेक्शन. यदि व्यक्ति किसी चीज का भी लेन देन करता है तो आप देखते हैं कि एक तरफ वो रिसीव कर रहा है तो दूसरी तरफ गिविंग कर रहा है, मतलब पेमेंट कर रहा है उसका. सेक्रीफाइस मतलब रिसीविंग द वैल्यू, receiving the value and giving the value on other hand, giving the value when the transaction takes place, just my dear children, receiving the value and giving the value. So in easy way you can define in every transactions, such transactions can be measured in the terms of money, just the affecting the two-fold aspect, that is called debit and credit in the language of account. Now dear children, double entry system is the most progressive, significant, signifies and complete system of recording the financial transaction of a business. The rules of recording transaction under this system are so definite and clearly stated that the system, one account is debited and other is credited. Suppose that we are purchasing something, purchasing the goods. So what comes in? Just receiving one assets. Now you can say one assets is increasing. अगर जो कोई बिजनेस में आप सामान खरीद रहे हैं, कोई मशीनरी ले रहे हैं, तो मशीन आपके पास एक एसेट्स आएगी, तो एक एसेट्स आपकी इंक्रीज होगी और दूसरा जो आपका कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब टू फोल्ड एस्पेक्ट, वेदर इन अपोजिट डायरेक्शन द टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वेदर वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर इज क्रेडिटेड. ये होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम. डेफिनेशन भी बहुत सारा दिया गया है,
इसका अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आप जानते हैं अकॉर्डिंग इन डबल एंट्री सिस्टम just the 2 accounts are affected in opposite direction. One is debited and other is credited. What comes in debit, the golden rules of commerce, and what goes out, that will be credited. यदि हम कोई सामान, कोई भी एसेट्स एक्वायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे कोई सामान लेते हैं, तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। यह है मीनिंग। अब आइए हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Now each and every transactions affect at least 2 folds of account. Each and every transaction in the organization, in the enterprise, दो बेटा कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ तो वो 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट, चाहे वो पर्सनल हो चाहे इम्पर्सनल हो, सबको डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इसका जो रिकॉर्डिंग होता है बेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक में, तो आप देखेंगे ये स्पेसिफाइड रूल के ऊपर है, एक नियम के ऊपर आधारित होता है। जो रूल बना हुआ है कैसे हम डेबिट करेंगे और कैसे क्रेडिट करेंगे, ये चीज हम आपको अगले चैप्टर में जर्नल में बताएंगे, उसका रूल्स नए वीडियो के माध्यम से। अभी केवल इसका मतलब आप समझ लें, सारे शब्द कोई ना कोई मीनिंग रखते हैं और इस मीनिंग के तहत आप इस डबल एंट्री सिस्टम को समझ पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इससे ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर होता है। आप कहते हैं थोड़ा बुक का लैंग्वेज बता दिया करें सर, इसलिए मैं ये आपको हेडिंग वाइज बता रहा हूं। अब आप देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताएंगे आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट 2 तरह का होता है, आप देखेंगे। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका आएगा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल 2 तरह का अकाउंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आप देखेंगे कि अकाउंट आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिफर सच अकाउंट्स दैट इज इंडिविजुअल, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ फर्म जैसे राम श्याम या ये हो गया, या किसी कंपनी का नाम मेसर्स टाटा, बिरला, बिल गेट्स, हिंदुस्तान लीवर, इस नाम से जो अकाउंट खुलता है ये आता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। अब आप देखेंगे जो
इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें दो अकाउंट आता है। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंतर्गत बेटा ये जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है इसका दो भाग होता है। एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। बहुत आराम से आप समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। एक इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या होता है? In this account, the transaction takes place just the acquisition of assets. संपत्तियां जितनी रखी जाती हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत रखी जाती हैं। एक्सपेंसेस और इनकम जो भी होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखें रियल अकाउंट जो होता है, अच्छा एक चीज ये पर्सनल अकाउंट भी दो तरह का होता है। ये देखें आप, एक होता है नेचुरल और ये होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल मीन्स पर्सनल अकाउंट जस्ट द ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, these come in the category of natural account. Artificial account, name of the firm, name of the companies, etc. जैसे इसमें आप नेचुरल अकाउंट में ले सकते हैं राम, श्याम, गीता, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके नाम से जो अकाउंट खुलता है वो नेचुरल अकाउंट में आता है। आर्टिफिशियल अकाउंट में किसी कंपनी का नाम, टाटा, बिरला, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया लिमिटेड, कंपनी के नाम से, फर्म के नाम से या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से यदि अकाउंट ओपन किया जाता है तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट कहलाता है। अब आइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आइए आपको हम बताते हैं कि ये रियल अकाउंट क्या होता है। ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यूज कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। उन वस्तुओं का रियल अकाउंट में जिनको हम रुपए में, जिनका मूल्यांकन, जिन एसेट्स, जो संपत्तियां, जो सामान हम खरीदते हैं, जिनको हम रुपए में उनका मूल्यांकन कर सकें, उन्हीं को रियल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। रियल अकाउंट के अंतर्गत भी दो तरह का अकाउंट होता है। इसका होता है टेंजिबल और दूसरा होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत such things which are having the physical existence, जिनका फिजिकल एग्जिडेंस होता है वो आते हैं टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत। इनटेंजिबल नॉट हैविंग द फिजिकल अपीयरेंस, जस्ट दे कम इन द कैटेगरी ऑफ इनटेंजिबल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल टेंजिबल मशीनरी, प्लांट that can be seen, that can be touched. Intangible account, goodwill, brand, patent, copyright, or different etc. Just you can tell intangible account.
Nominal account, these accounts include the account of all expenses and income. इसके अंतर्गत जो भी फर्म का एक्सपेंस, खर्च, सैलरी, वेजेस या कुछ भी, ये होता है बेटा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। एक और हम आपको अकाउंट बताते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का इट रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर पर्सन, द अमाउंट हैज टू बी पेड इन फ्यूचर। सपोज दैट चाहे एडवांस हुआ चाहे किसी भी प्रकार का हुआ, यदि हम उस अमाउंट को फ्यूचर में, सपोज दैट किसी व्यक्ति की सैलरी या मजदूरी बाकी है और उसका भुगतान उस साल नहीं हुआ है, तो वो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसकी सैलरी बाकी है, तो उसे आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये हो गए टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब आपको हम बताएंगे स्टेजेज आर पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या क्या इसका पार्ट होता है? स्टेजेज, सबसे पहला क्या होता है? ओरिजिनल रिकॉर्ड। First steps involving in double entry system, original record, all the transaction just incurred during the assessment year are recorded in the books of account originally with the help of source document. And second, classification. Then all the transactions are classified in the category by opening the accounts in ledger बुक में अकाउंट खोल करके एक जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है एट वन प्लेस दे आर रिकॉर्डेड। क्लासिफिकेशन हो गया। तीसरा होता है आपका समरी। इन दिस स्टेज ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर और बैलेंस्ड, उनका समरी एक स्थान पर बना करके उनको बैलेंस किया जाता है। वो उनका सेल्स निकाला जाता है कि कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये होता है समरी। ये स्टेजेज होते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में आ जाएं आप। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेज में फर्स्ट हेडिंग है बेटा जस्ट द साइंटिफिक सिस्टम बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसके बाद है आपका complete record of every transactions. With the help of such account, all the transactions takes place in the enterprise. Just they are in systematic and complete record we can find. Next one, preparation of trial balance. With the help of ledger book, we can prepare the trial balance to check the arithmetical accuracy of the transactions or accounts. Next one, knowledge of financial position of the business with the help of double entry system, because it affects the twofold aspect of the transactions. We can ascertain the exact financial position of the business, financial performance of the business. ये होता है knowledge of various information, and with the help of double entry system, when the transactions are recorded in such types, just we can have a lot of information regarding the business enterprise, and the users can take benefit and they can take interest in the business organization. Means क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स कितना है, सब कुछ बेटा इससे मिल जाता है। उसके बाद
लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इस डबल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड करने की संभावना कम होती है। लीगल अप्रूवल, और दिस वन इज द लीगली अप्रूव्ड, ये लीगली अप्रूव्ड भी है। इससे in the case of any dispute arising in the enterprise, just it can do the work of evidence, प्रमाण का भी काम करती है। उसके बाद है comparative study। Because of that, according to the consistency principle, year to year the process and the method adopted in the double entry system, just we can compare the business can be compared, the information can be compared year to year, cost of goods sold, closing stock, means मतलब ये है कि बेटा सारी चीजों का आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बाय हैविंग द accounting information, management can take accurate decision as planning, controlling, directing of the organization. Now dear children, suitable for all types of business, and it suits all types of the business. Such business enterprise keeping the accounting in double entry system, whether having the shape and size, common size or small size, big size, means a number of principle and number of policies are made the council of India Chartered Accountant or accounting, the transactions can be recorded, or accounting information can be provided to the management, to the users of the business organization. Thank you very much. This one is the end of the double entry system.